Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Now you listen. Yes. Okay, beta. Now you take out your book and see page 101. Yes. So date 1. Yes, and write today's date. Just a minute. Yes, सब आ जाए बेटा. Okay. They are joined. Okay, class. Yes, have you take out page 101? Yeah, please wait 2 minutes. Okay, okay. Just take out. Wait 2 minutes. Teacher Hafsa is not in class. Teacher. Afsa. Hafsa. Maybe come late. जी मैं हफ्सा को बोलती हूँ. Okay. Okay. Teacher? Yes. Yes, class. Teacher? Yes, tell. Yes. Teacher? Yes, tell बेटा. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने कहा था ना कि टेस्ट एक्सरसाइज एक आपने करवाया था ना, बाकी आपने कहा था कि 2 खुद से करने हैं. मेरे साहब ने 101 पढ़वा दिया था. तूने पढ़ा दिया था, इसका हम टेस्ट एक्सरसाइज कर रहे थे ना. टीचर ये साहब ने 101 पढ़ा दिया था. Teacher. Yes. Which is the page number? 101 बेटा. 101 और टीचर ने पढ़ाया नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाए थे. आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग. Our question answer is complete. Test exercise is complete. यस. यस टीचर. यस टीचर कर लिया था. हेलो मिस सर. Okay. मिस ये थर्ड क्वार्टर है. Yes. Okay. Second term. Teacher? You have only 2 terms in this year. Okay. First term Okay, is okay. complete. Another second term. यहाँ से पढ़ना है. Okay. Please So start miss, from breathing. पढ़ लिया हमने. यहाँ से टीचर? Yes, tell. मिस अब जो पेपर मैं आएंगे ये वो कह रहा थर्ड हूँ क्वार्टर के लिए. टीचर. No. First you give the exam of midterm. Okay. After midterm, these syllabus include in the final term Teacher? exam. Okay. Yes. Yes. Teacher? Teacher? Yes. कैनरी. यार मुझे Okay, कर okay. दो यार 1 मिनट रुक जाओ. टीचर? जी बेटे बोले. टीचर मैं ये कह रहा हूँ आपने ना फ्राइडे वाले दिन ना आपने एक टेस्ट एक्सरसाइज करवाए थे जी. और आपने बाकी कहे थे कि 2 खुद से करने. तो ये मैंने दोनों खुद से किए हैं बाकी. कर अब लिए मैं क्या करूँ? जी कर लिया तो कोई बात नहीं. अच्छी बात है. क्या हुआ? वही रहने दो. मैंने भी कर लिया, लेकिन मैं बोल रहा था कि टैली करवा दे. अगर आंसर गलत होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ तो आप कहाँ से आपको पढ़वा दूँ? लीजिएगा. अब ये कहाँ से आपको पढ़वा दूँ? टेस्ट योरसेल्फ करवा चुकी हैं. all 4 5 6 क्वेश्चन all 100 का करवा देता 101 नहीं करवाएगा. बस ठीक है. टीचर यस डन. टीचर डन. ओके बस ठीक है बेटा. तो नाउ जो मेरे स्टार्ट. हैं वही रहने दो. हाँ फिर अब आप देख लीजिएगा, इन लोगों से टैली कर लीजिएगा. ठीक है. सब मैंने करवा दिए हैं सारे. ठीक है. क्लास में भी करवा दिए. I will tell you. Okay, yes, you tell to Ayan. Okay. Now we start breathing topic. Okay. Yes, start breathing. Asad, you read breathing. After Asad, I will read. Okay. Breathing takes place in the lungs and is simple a way of getting oxygen into to the blood and Into the carbon body. dioxide out of Body. it. हाँ. Body. Yes, ma'am. Okay. क्या आगे बढ़े? Into the body and carbon out of it. Yes. Blood carries ये teacher? blood carries oxygen from the lungs to the cells and carbon dioxide from the cells back to the lungs. Okay. Yes, class. Just tell me. Class, we have already discussed about the Mrs. breathing. Ma, teacher? Yes, tell beta. टीचर Yes, tell. सब बोल रहे हैं कि चैट पे बच्चे बोल रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर का ये जो आप करा रही हैं तो सेकंड क्वार्टर का होगा ना. बेटा मैंने आपसे क्या कहा है कि in this exam, in this year we have only the 2 exams. Okay, mid term and final term. Final है. This is a final नहीं, term it's final term. syllabus. Okay, mid term का syllabus Miss, second और third को दिखा दिया था ना.
मिड टर्म सिलेबस में आपको दे चुकी हूँ, ये ये सेकंड और थर्ड फाइनल दोनों टर्म का है। पहला वो है। ठीक है। Yes, ma'am. वो मिड टर्म तक का सिलेबस हो चुका, ठीक है, वो मिड टर्म में वहीं तक ओके आएगा, ठीक है। और अब जो हम कर रहे हैं ठीक ये फाइनल टर्म में आएगा ये, ओके ठीक है। तो ये सब फाइनल टर्म का जितना बाकी चैप्टर पूरा फाइनल टर्म का ही है, ठीक है। Okay, so now our class Yes, will ma'am. start again breathing. Class, you know what is breathing? I have told you many times in the class the difference between the breathing and respiration. So breathing is basically Yes, the ma'am. exchange of gases. Okay, when you breathe in or inhale the oxygen and you exhale the carbon dioxide. You see on your screen also. This is the breathing. Okay, in the breathing, what you are do? You take in oxygen and get rid of carbon dioxide. मैं थोड़ा सा आगे करूँ ताकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ जाए. Okay, this is the carbon dioxide, exhalation of carbon dioxide. Okay, so when you inhale oxygen and you exhale carbon dioxide, so this is called the breathing. ठीक है, जब आप जो है वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में एंड यू एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आउटसाइड योर बॉडी, दिस इज कॉल्ड द ब्रीथिंग. इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. यहाँ तो बात समझ में आ रही है. ब्रीथिंग इज अ वेरी सिंपल, ओनली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ऑक्सीजन इज टीचर इनहेल. मरियम को ऐड कर लें. मरियम तो यहाँ नहीं आ रहा, मेरे पास शो नहीं हो रही. अभी शो होंगी तो मैं ऐड कर लूंगी. यहाँ पे इसमें शो होता है ना, स्क्रीन पे तो आई नहीं थी. ठीक है, इससे बोले वो दोबारा वो करे ना, फिर यहाँ शो होगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी. ओ 37 चैट कितनी चैट हो रही है भाई. ओके ओके, now class, now you listen better. So now we start the structure of the lungs. Breathing, you understand? You all understand breathing? Only the exchange of gases, inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide is called breathing. Okay, now we start the structure of lungs. Yes, who read the structure of lungs? New student, I think. Yes, Saad. Saad, you read. टीचर क्या नहीं? टीचर क्या नहीं? अच्छा, अगर साथ रीड नहीं कर तो आप रीड कर लीजिएगा. साथ, you read with the structure of lungs. Structure of lungs, yes, you read. टीचर मैंने बोला था रीड करने का. तो मैंने बोला था. Okay, okay. The lungs are two elastic pouches lying inside the ribs. They are connected to the air outside the body by the windpipe or trachea. This opens into the back of the mouth and nose. The trachea divided into two smaller tubes called bronchi. One of these goes into each lung before dividing further into smaller tubes called Bronchioles. bronchioles. After yet more branching the tube and in tiny thin-walled air sac called alveoli. Okay, yes, just a minute. Mariam, accept that. Okay. So next, yes, Harim, you read next paragraph. Lining all of the air passages Yes, are two types of are cells. two types of cells. One type is covered with tiny hairs called cilia. The other produce a sticky liquid called mucus. Small dust particles and bacteria stick to the mucus. The cilia beat to carry the mucus up to the back of the mouth where it is swallowed. Okay, stop. Okay जी, पहले इतना explain कर दिया जाए. Okay, yes, class. Now we start the structure of lungs. You see, you have already seen the lungs. I have show you the lungs. Okay, this is also the structure of lungs. You see on your screen. Okay. Yes. The lungs are two spongy, elastic pouches. Okay, they lies inside the ribs. Okay. Where is the lungs located? In your ribs. You know where is the ribs? Ribs कहाँ पे हैं आपकी पता है Is आपको? it ribs? Yes, ribs. Do you know? Inside, you see your ribs, especially the thin person easily see their ribs.
okay, on both side of your waist. So these ribs पेज having नंबर क्या है? 101. Okay, these ribs having the two lungs. Well, these are the two elastic pouches. Okay, and you see these two lungs are joined with each other with the trachea. I think I have told you about the trachea. Where is your trachea? Do you know? Yeah. The trachea is in your neck. You touch your hand with your neck and yes, you touch your neck and you feel the trachea in between the neck. Okay, this is the windpipe. This windpipe is called the trachea. Okay. Okay, on your neck you touch it and you feel this trachea in the center of your neck. Okay, and this is a windpipe, and near this near your lungs, this windpipe is divided into two branches. Okay, you see on screen. Okay, this is the trachea. Yes, So miss. this trachea is come from Yes, your miss. nose to the neck. Okay, it's passed from your neck and it come near your lungs. Near your lungs is divided into two parts or two branches. अब आपके lungs के करीब आने के बाद this trachea is divided into two branches. These two Teacher? branches is called bronchus. जी बेटा. टीचर बॉयज बहुत ज्यादा चैट पे मैसेज भेज रहे हैं, बहुत ज्यादा चैट पे मैसेज भेज रहे हैं. Yes, teacher. Okay, yes, all boys, please. You see on the screen. Okay, I ask the question from you. मैंने आपको कहा अभी तक कि म्यूट मार दे. Okay. ऐसी है काली काली चादर दिख रही है. Okay, all mute all. काली चादर दिख रही है. Can I read? Okay, but first I explain better, then you will read. Okay. So Okay. Yes, what happened, beta? Everybody keep quiet. Okay. Now only you listen. Okay. So now this trachea is divided into two branches or two parts. This part is called the bronchus. You see, this is a bronchus. The trachea is divided into two branches. Okay, now Hafsa come. Okay, so this branch is called the bronchus. Inside the lungs, this bronchus is further divided. Okay, and this is called the bronchioles. ठीक है, ये bronchioles को bronchioli लिख दिया. Bronchioli, this is called the bronchiole. ठीक है, you understand? This trachea is divided into bronchus and then into bronchioles. ये bronchioles हैं जो आपको बहुत branches नजर आ रही है ना. These are the bronchioles. And at the end of these bronchioles, a air sac is present. जहाँ पे ये bronchioles end होती हैं वहाँ पे जो है वो air sacs. Okay, means this is just like a balloon. Okay, small balloon are present at the end of this all air sac. Okay, all the at the end of the all bronchioles. Okay, this is called air sac or alveoli. Okay, this is called alveoli, and these alveoli, the basic part where the exchange of gases take place. Okay, ये alveoli वो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा exchange of gases होती हैं. Yes, what happened, boys? जी बेटा बोलिए. Why are you confused? टीचर साइम माइज और साथ कब से चैटिंग कर रहे हैं, तो हमने बोला बॉयज मत करो, तो बोल रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम है. इनका ना दिमाग खराब हो गया है. ये इनको बोले मैसेज देके शुरू में ये लोग बातें कर रहे थे. शुरू में बस हमने हाय भेजा था, उसके बाद तुम लोग कब से बातें कर रहे हो? अच्छा, अभी मैं कब से बातें कर रहे हो? शट अप. Now all boys and girls keep quiet. Don't chat. Okay. This is your class for your study. मैंने एक चैट नहीं बोला, देखें आप चेक कर लें. Okay, good. शरीफ बच्चे. Okay, Science. मैं वीडियो को सेंड करूं तुम्हारे चैट. Ayan, now keep quiet. Okay, yes, class. So now only you see this diagram. This diagram you also draw in your notebook. Understand? और ये जो अभी बातें हो रही है ना, फिर मैं क्लास में आपका क्वेश्चन करूंगी. आपको पता है ना, योर फिजिकल क्लासेस आल्सो हेल्ड. यस. ठीक है, आप फिजिकल क्लासेस भी होने वाली हैं आपकी शुरू. अब आप फिजिकल क्लासेस के अंदर फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, फिर आपको बताती हूँ फिर मैं. ओके, नाउ यू सी
नो मोर चैटिंग. अब कोई मुझे चैट करता नजर ना आए. Yes. Okay. So now you see, this is the trachea. This bronchus. Bronchus is divided into bronchioles. At the end of the bronchioles, alveoli is present, and alveoli is the part where the exchange of gases is take place. In the lungs, two types of cell is present. Lungs के अंदर जो है वो दो तरह के cells होते हैं. Okay. The first layer of the cell having the cilia. What is the meaning of cilia? Cilia क्या होता है? Cilia is called the hair. Okay, cilia is hair-like structure which are present inside the lungs or inside all the respiratory tract. खाली lungs में ही नहीं होते बल्कि पूरे आपके respiratory tract जो होता है from nose to all trachea or bronchus, this hair or cilia is present. Okay, and then the second type of cell produce the mucus. Okay, mucus is the secretion which is produced in the lungs or in your respiratory tract. Okay, so this when you engulf any foreign particles or the germs, so this cilia beat it and the mucus combine with this germ and you swallow it. ठीक है, आप जो है वो जो भी कोई जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर होता है फ्रॉम द नोज फ्रॉम द माउथ, सो दिस सीलिया विच आर प्रेजेंट इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बीट इट, उसको जो है वो उसको बीट करते हैं वो. और जो टीचर आवाज ऐसी नहीं है आपकी. Okay, now try to listen. Okay, so this cilia जो होते हैं, cilia क्या है? Hair like structure है. और आप जो है वो देखना चाहें cilia तो आप देख सकते हैं. When you stand in front of your mirror, okay, and you take a torch, एक torch लीजिए, torch को जो है वो अपनी nose पे डालिए और आप जो है वो mirror में देखिए तो आपको hair आपके nose में जो है वो नजर आएंगे. This is the cilia. Okay, these cilia basically used to protect your body from the germs. कि अब आपकी बॉडी को germs से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये जो है वो जर्म्स को वहीं पर रोकते हैं और उसको जो है वो बीट करते हैं ताकि ये है जो है वो म्यूकस के साथ मिक्स होके आपकी बॉडी जो है उसको सॉलो कर ले, इसको आप निगल लें और फिर ये जो है वो आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से आपकी बाहर आपकी वेस्ट मटेरियल के थ्रू पास आउट हो जाए. तो जितने भी जर्म्स होते हैं वो ये सीलिया और म्यूकस के थ्रू इजीली जो है वो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं, वहां से भी जो है वो आपकी वेस्ट मटेरियल के थ्रू आपकी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं. ओके, कुछ समझ में आ रहा है या अभी भी बातों में लगे हुए हैं? कितने चैट्स? टीचर बहुत सारे बॉयज और कुछ गर्ल्स भी हैं जो बातें कर रही हैं. तो मैं नहीं हूँ. ओके, आई चेक योर चैट. ओके, मिस इन सबको बोल रहे हैं प्लीज चुप हो जाए, हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये लोग तो पढ़ने ही नहीं रहे. जब से आपने यही हो रहा है. मैसेज नहीं भेजा. ओके, यही हो रहा है. ये किस किस के आ रही है? हरीफ का भी है, साथ का भी है, यहाँ पे मोहम्मद का भी मैसेज है, साइमुद्दीन मेरा चेक करके मेरा कोई भी नहीं होगा. अच्छा, आप तो खैर आपने इस तरह उमर का भी है. सो अब प्लीज आप सब एक बार सुन लीजिए, आपकी तमाम रिकॉर्डिंग मैडम सुनेंगी. ठीक है ना? चले आप लोग करें बातें और ये चैट भी सारे मैडम देखेंगे ना, फिर आपको क्लास में आके बताएंगे. ठीक है? आप लोगों को एक दफा में नहीं समझ में आ रहा है? ओके, फजूल किस्म की चैटिंग जो आप लोग कर रहे हैं ना, तो ये आपको मैडम बताएंगे फिर. ओके, yes, Taiba, you read next page 102. Taiba. Teacher, I can't hear your voice. Okay. I read. Yes, Hafsa, you read. Taiba sharing के लिए Hafsa, you read. By diffusion, the alveoli are well adapted to speed up this process. टीचर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, कट आ रही है. ओके बेटा, लेकिन अभी तो वो रीड कर रही हैं. ओके, तैयबा रीड कर रही हैं. तैयबा रीड लाउडली बेटा. ओके, जब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, लेकिन थोड़ी सी स्लो आ रही है जरा. Because there are thousands of very small alveoli. 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 There is a very alveoli. There is a very big surface area for the oxygen and diffuse across. The walls of alveoli are very thin in places, just 1 cell thick. The lining of the alveoli is moist so that the oxygen can dissolve.
The alveoli are surrounded by a dense network of tiny blood vessels called capillaries. Capillaries. Yes. Carry the oxygen away and bring carbon dioxide back. Okay, stop. Yes, what happened? Yes, now class, we have discussed how the oxygen is moved and reach in your blood. So first of all, you tell me, you understand the structure of lungs? Structure of lungs, you understand? You see on the screen and tell me. This is the trachea. Okay, this trachea divided into bronchus. This bronchus is divided into bronchioles. These are bronchioles branches are just like a leaf. This is the branches of bronchioles. At the end of the bronchioles, alveoli is present. Alveoli is a small balloon-like structure. And now we are discussing about the alveoli. Okay, alveoli are very small. जरा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Okay, beta. I try to speak fast. Okay, speak louder, but you all please close your mic. Okay, mute your mic. So now you listen. Okay. Just close. Ji Mariam, now please try to listen. Okay. So this alveoli are very small. Okay, you see on screen. This pink color is alveoli. Okay, these are the small balloon-like structure, and this small balloon-like structure is very thin wall. Why this their wall is thin? Because their wall having the small blood capillaries. Okay, इनकी जो वॉल होती है एल्वेलाई की वो बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है. क्यों पतली होती है? क्योंकि इनकी वॉल में जो है वो ब्लड की कैपिलरीज हैं, वेरी थिन ब्लड वेसल्स. ठीक है, ताकि इजीली जो है वो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से एल्वेलाई से डिफ्यूज होकर आपके ब्लड में पहुंच जाए. ओके, व्हेन दिस ऑक्सीजन इज रीच इन योर ब्लड, सो from this blood it go into your heart, and from this heart it reach in your whole body cells. ठीक है, यहाँ से ब्लड जो है वो आपके हार्ट तक जाएगा और हार्ट से जो है पूरी बॉडी तक ट्रांसफर हो जाएगा और ये ऑक्सीजन जो है वो आपके बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंच जाएगी. ओके, so class, understand the walls of the alveoli are very thin and just their thickness is just only 1 cell thick. ये thickness जो है सिर्फ only 1 cell thick है. जाएगा ना 11 बज रहे हैं, उठ जा. Everybody keep quiet, okay? Yes, class, so now you tell me, you understand? Yes. Yes. Okay. टीचर क्लास लेक्चर लिखना है ना? बिल्कुल बिल्कुल लिखिए. ठीक है. Now class, this is the structure of the lungs. Okay, now we start. Did you know? Okay. Yes. Mariam. A second. Sharia, you read. Yes. Sharia, you read. Did you know? Mariam को पता ही नहीं है. Can I read? Page number. Yeah, I read. Very good, very good. 102. नहीं पता, खड़ा कर दे. Yeah, I read. कहाँ खड़ा करूँ? जी पढ़ो. Yes, read it. अब बेटा शैया को रीड करने दें आप लोग. ठीक है, ये शैया read. Did you know? The surface area of all the air sacs but together is about the same size as a tennis court. Okay. There are more than 2,000 km of blood vessels. Kilometer of blood vessels in your lungs. Yes. Blood vessels in your lungs. Yes. You either swallow. You either swallow or cough up mucus. Mucus Containing dead and bacteria. Dirt and bacteria. Yes, who understand? किसको समझ में आ गया ये? Explain. Yes, explain. ये जो सरफेस एरिया होता है वो सारे जो एयर सैक्स. Yes, टेनिस
टीचर सरफेस एरिया जो होता है ना, हाँ, वो एयर सेल्स को साफ करता है। सेम साइज के बारे में और टेनिस कोर्ट। ओके, यस यस। There are more than 2,000 kilometer of blood vessels in your lungs. तो 2,000 से ज़्यादा किलोमीटर blood vessels होते हैं हमारे lungs में। You either swallow or cough up mucus containing blood and bacteria. Understand? कुछ आया समझ में? Okay, now class, you know what is mucus? No teacher. So why you don't ask? जब मैं mucus कह रही हूँ आपको नहीं समझ आता, आपने पूछा क्यों नहीं? Mucus क्या होता है बेटा? जो आप कहते हैं ना बलगम कहते हैं जिसे आप. Okay, this is the mucus. This mucus is continuously produced in your body. Okay. So now you listen this. Did you know all is very informative? So first you listen the surface area of the mucus क्या होता है? जो आपके नज़ला जो होता है बलगम जिसे कहते हैं आप, ठीक है? तो दिस इज द म्यूकस जो आपके जो है वो फ्लू में जो प्रोड्यूस होता रहता है, फ्लू में स्पेशली आप यू सी, बट दिस म्यूकस इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस इन योर बॉडी, ये आपकी बॉडी मुस्तकिल बन रहा होता है. ओके, दिस म्यूकस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैच अप ऑल द डर्ट एंड बैक्टीरिया. जितने बैक्टीरिया और डर्ट आपकी बॉडी में एंटर होती है तो तमाम जो होती है वो ये जो म्यूकस होता है इसको जो है वो ट्रैप कर लेता है. ओके, आप जो है वो इस म्यूकस को या तो कफ अप करके बाहर निकाल दें या इसको स्वैलो करके जो है वो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाएं. दोनों सूरतों में जो है वो बैक्टीरिया और डर्ट जो है आपकी बॉडी से बाहर आ जाती है. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, द सरफेस एरिया ऑफ द ऑल एयर सैक और मींस द एल्विलाई. जितने भी एल्विलाई आपके लंग्स में मौजूद हैं, अगर उन सबको आप ओपन करके इनका सरफेस एरिया नोट करें तो इन सबका सरफेस एरिया ऑलमोस्ट जो है वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर. टेनिस का मैच देखा है आप लोगों ने? तो बच्चों का मैच से शोर आ रहा है, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है. चलो मैंने टेनिस के जो है वो आप मतलब न्यूज में देखें, आपको न्यूज में जो है वो टेनिस का दिखाएंगे. मैं बेटा सबके म्यूट कर रही हूँ, ये ऊपर हो जा रहे हैं. ठीक है. सो टीचर आपकी आवाज बहुत ज्यादा है. अच्छा, मैं तेज बोलती हूँ. ठीक है. ये जो टेनिस कोर्ट होता है ना, जिसमें टेनिस गेम खेला जाता है, तो आपको बता रहे हैं कि अगर आपके एल्विलाई को जो सरफेस एरिया जो है एक लंग्स का जो है वो एल्विलाई जितने पाए जाते हैं उनका सरफेस एरिया अगर हम मेजर करें सो इट्स अबाउट द साइज ऑफ द टेनिस कोर्ट. जितना एक टेनिस कोर्ट होता है जहाँ पे टेनिस खेला जाता है, इतना बड़ा जो है वो सरफेस एरिया हो जाएगा इन एल्विलाई का. ठीक है. और जो आपके पास जो है वो ब्लड वेसल्स है, सिर्फ आपके लंग्स की ब्लड वेसल, पूरी बॉडी की ब्लड वेसल नहीं, सिर्फ आपके लंग्स में जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो नालियां हैं जिसमें खून जो है वो आपका ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है. ओके, सो दिस ब्लड वेसल इज 2000 किलोमीटर. 2000 किलोमीटर इज वेरी बिग सरफेस एरिया. ओके, सो आपके जो ब्लड वेसल्स आपके सिर्फ लंग्स में मौजूद है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर लॉन्ग है. ठीक है. और ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है. अभी कभी आप जो है वो इसको मेजर करके देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा. जी, दिस इज अ 2000 किलोमीटर लॉन्ग ब्लड वेसल. आवाज हल्की आ रही है. लॉन्ग जी बेटा, आप लोग अपनी आवाजें बंद करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को आवाज आ जाएगी. ओके, सो नाउ द डिड यू नो, यू अंडरस्टैंड क्लास? Yes. Okay, now you yes. see this. Did you know? You also see this picture which are present on the page 102, and tell me which part you don't understand. Yes, teacher. अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा? ये सारा है. आप रीड करके देख लें और मुझे बताएं कि कौन सा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा. यस सेल. जो डायग्राम बना है उसमें या फिर डिड यू नो में? हाँ नहीं, डिड यू नो नहीं, डायग्राम में. डिड यू नो तो समझा दिया. डिड यू नो में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए. रिब्स बेटा पसलियां को कहते हैं. पसलियां पता है ना क्या होती है? ये आपकी जो साइड में बोन्स होती है ना आपकी वेस्ट के, दिस इज द रिब्स. ठीक है. रिब्स आपको जो है व्हाट इज ट्रैकिया? टीचर व्हाट इज ट्रैकिया? ट्रैकिया इज प्रेजेंट इन योर नेक. आपके नेक में आप पिक्चर में भी देख लीजिए. ठीक है. आपने आपसे कहा अपने नेक को टच करें सेंटर से, सेंटर पार्ट जो आपका नेक को टच करें. ठीक है. ब्रोंकस. यस टीचर, आई गॉट इट. Got it, the trachea? Okay, अब trachea जो आगे जाएगा. Okay, हाँ, in the ribs. Okay, in the ribs, this trachea is divided into two parts.
वही बता रही हूँ आपको बेटा। यू लिसन, दिस ट्रैकिया इज नियर योर लंग्स। जब ट्रैकिया आपके लंग्स से करीब पहुंचेगा तो वहां जाके ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। दिस 2 ब्रांचेस इज कॉल्ड द ब्रोंकस। ठीक है, यानी कि दोनों लंग्स में जाकर ये जो है वो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा। यू सी ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे देखिए अयान, सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द ट्रैकिया। इट्स कम फ्रॉम योर नोज टू द नेक। ठीक है, और यहाँ पे जब ये लंग से करीब पहुंचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अयान नाम हटा दीजिए अपना। ओके, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। दिस इज द ब्रोंकस, ये ब्रोंकस है। यस टेल टीचर। यस, जो लेफ्ट साइड पे रिब बना हुआ है उसके अंदर जो है वो होता है एल्व्यूल, एल्वियोली। बेटा एल्वियोलाई जो होते हैं वो स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन्होंने जो है वो टीचर जो लेफ्ट लंग पे, लेफ्ट रिब पे बना हुआ है। हाँ, लेफ्ट जो जहाँ ब्लू कलर से शो किया है नीचे। यस, हाँ वो यहाँ ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई देखिए, एल्वियोलाई कैसा है, कप की तरह का स्ट्रक्चर है बिल्कुल जो है वो जो रेड कलर का है। नो, जो नासी लास्ट 2 पिक्चर। टीचर ये तो बलून जैसा है, छोटे छोटे बलून जैसे। हाँ ऐसे ही होते हैं, ये जैसे बलून लाइक स्ट्रक्चर। ओके, दिस एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई देखें आपको लग रहा है नेट के अंदर है। दिस नेट बेसिकली द ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड की कैपिलरीज है। टीचर ये खून की नालियां। हाँ ये खून की नालियां हैं। ठीक है, ये ना एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई के ब्लू कलर के बने हुए हैं ना, ब्लू कलर यहाँ पे भी और यहाँ पे नीचे भी लगा रहे हैं। नीचे वाले को उन्होंने ऑफ कट करके दिखाया आपको एल्वियोलाई को, ऊपर जो है पूरा बंच दिखाया एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई ऐसे हर बंच माउस के एरो से निशान करके बता दे। क्या बता दूं एल्वियोलाई? दिस इज एल्वियोलाई। यहाँ पे नजर आ रहा है पिंक कलर के नजर आ रहे हैं। दिस इज एल्वियोलाई, दिस इज बंच। ओके जैसे बंच आपको नजर आ रहा है ना वहाँ पे आपकी बुक में ब्लू कलर में, ऐसे ही देखिए ये बंच है। दिस इज अ बंच ऑफ एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई के बंच हैं। ओके 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 ओके, अंडरस्टैंड। अब आप लोग डायग्राम को अच्छे से देखिए और जो नहीं समझ पूछे तो मैं आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लूंगी। जी बेटा बोलिए। टीचर। हाँ बोलिए बोलिए। एल्वियोलाई को, हाँ टीचर एल्वियोलाई को एयर सैक बोलते हैं। जी, एल्वियोलाई को एयर सैक बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं अटेंडेंस ये एल्वियोलाई। जी अयान, ये एल्वियोलाई। जी एल्वियोलाई आपकी बुक में जो है वो ब्लू कलर में शो किए गए हैं बंच। हाँ ये जो एल्वियोलाई है। ठीक है, ये जो पिंक कलर के अयान ने जो यहाँ पे आपको मार्क करवाया है। मैं मैरून दुपट्टा और वो जॉर्जेट का दे दी, धोके धोने के लिए देना है तो दे दो। ओके जस्ट अ मिनट। यस व्हाट हैपेंड? सारे चार्जर टेढ़े करके लगाए हुए। ओके सो नाउ अटेंडेंस लेनी। हाँ मैं अटेंडेंस ले रही हूँ जब तक आप लोग जो है वो देखिए। ओके अयान, हफ्सा, हमजा इज हियर। यस ओके, उमर नहीं हियर और एब्सेंट। उमर नहीं है, अभी थे चले गए। अच्छा ओके। आई थिंक दे वर स्लीपिंग। उन्होंने लास्ट क्लास में भी यही किया था, शुरू में आए फिर वो चले गए थे। अच्छा सही है। अच्छा जी, चैटिंग करने के लिए। ये एयर सैक क्या होता है? बेटा एयर सैक एल्वियोलाई को कहते हैं। अयान कोई डायग्राम खराब नहीं करें अयान। डायग्राम इरेज कीजिए अपने तमाम। टीचर प्लीज टुक माय प्रेजेंट। यस अयान, साथ ये क्या हो रहा है? लंग्स खराब नहीं है। ये किसने किया है? लंग्स खराब साथ you clean this lungs. Hurry up. Okay beta, class. Okay, on Saturday, Thursday you will come in the class. Okay, so I will see in the class. तो थर्सडे को होगी? जी प्रेजेंट टीचर। कल नहीं है? वैसा भी आसस मैम नहीं करवा रही। मोहम्मद उसैर is here. Okay. Yes teacher. Anas is here. ये कल क्लास नहीं है? Anas is not here. Saad Aslam is here. Mohammed is here. Tayyiba is here. Maryam is here. And Hamza is here, Miss. हरीम आपकी लगा दी मैंने। Miss Hamza. टीचर मायजुबैरी। थैंक यू टीचर मोहम्मद आपकी लगा दी। Miss Payment लगा दी मेरी। मोहम्मद आपकी लगा दी है। मायजुबैरी। थैंक यू टीचर। ड्यूटी पे जाएगा। 11:30 हो रहा है उसका है।
हाँ या 2 बजे उठ के जाएगा फिर। मिस यस फर्स्ट यू म्यूट योर माइक बेटा एवरीबॉडी। आप लोग अपनी माइक म्यूट कीजिए, सब माइक म्यूट करिए। मैं खुद लगा रही हूँ अटेंडेंस, आप लोग मत शो कीजिए। टीचर म्यूटेड। अयान ने मेल लगा दी अटेंडेंस। अयान या मेल लगा दी। आप लोग जो डायग्राम खराब कर रहे हैं ना, ये मैं आपको क्लास में बताती हूँ बेटा। मैं आ जाऊँ क्लास में। लगा दी मैंने, लगा दी आपकी बेटा। खामोश हो जाइए बिल्कुल। नो कीप क्वाइट। टीचर मैं भी हूँ। मेरा गलती यस आई हाथ अब लग आके गया यहाँ पे। असल आपकी अटेंडेंस लगा दी मैंने। गलती से बार हाथ लग गया साइड में। टीचर थर्सडे को हमें स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। बेटा आपको मैडम इन्फॉर्म कर देंगे। आई थिंक गर्ल्स विल कम ऑन टुमारो वेडनेसडे एंड बॉयज मे बी ऑन थर्सडे। नॉट कंफर्म, इट्स कंफर्म बाय मैडम। बिफोर असाइनमेंट स्कूल आना एक हफ्ते जब मैं नो आई थिंक कंप्लीट असाइनमेंट नो कंप्लीट आई थिंक फॉर कंप्लीट स्टडीज बट नॉट कंफर्म। अभी भी कंफर्म नहीं है, आपको मैडम खुद बताएंगी। हम लोग हफ्ते में एक दफा आना होगा। यस गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट है ये, मुझे नहीं पता। ओके सो आपको मैडम बताएंगे, मुझे नहीं मालूम। इट्स नॉट कंफर्म। टीचर कल आना है जी ठीक है। अभी आपको टीचर मेरा हो गया मैडम कोई क्लास आवर क्लास टाइम इज ओवर। ओके मिस आपने मेरी लगा ली। मेरी अटेंडेंस लगा दी। सबके लगा दी। आपने मेरी नहीं लगाई। ओके मैं सही क्यों हो या फिर सबकी लगा दी। अरे